السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل اقرا آن لائن اردو کلاسز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، بہت بہت سواگت ہے۔ چلیے آج ہم لوگ کلاس 12 کے نصاب کو دیکھیں گے۔ کسی بھی ایگزام کے لیے نصاب کا جاننا، سلیبس کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہماری تیاری نصاب کے تحت ہو اور ہم اچھے ڈھنگ سے اپنی تیاری کو مکمل کر سکیں۔ ساتھیوں، سب سے پہلے اس شعر کے ساتھ ہم اس کلاس کو شروع کریں گے۔ سوچ تو آپ کی ہوگی مگر آواز ہم دیں گے، سوچ تو آپ کی ہوگی مگر آواز ہم دیں گے، خواب تو آپ کے ہوں گے مگر آغاز ہم دیں گے۔ ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ اتنا ہے کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ اتنا ہے کہ ارادے تو آپ کے ہوں گے مگر پرواز ہم دیں گے، مگر پرواز ہم دیں گے۔ ساتھیوں، آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کلاس 12 2027 کے نصاب کا، سلیبس کا، پاٹھ کرم کا۔ ابھی 2027 میں جو بچے ایگزام دیں گے ان کے لیے یہ نصاب ہے۔ نصاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اسی نصاب پہ، اسی پیٹرن پہ ایگزام ہوگا جس پیٹرن پہ پچھلی مرتبہ ہوا۔ تو ہم لوگ سمجھیں گے کہ کلاس 12 میں ہمارا جو ٹیکسٹ بک ہے، ہماری جو کتاب ہے نصاب میں، وہ کون ہے اور اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، ساتھ ہی گرامر کو بھی سمجھیں گے۔ ہمارا جو سلیبس ہے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا ہے ٹیکسٹ بک، جسے درسی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ درسی کتاب یہ کون ہے؟ کہکشاں حصہ 2۔ ہماری جو کتاب ہے وہ کون ہے؟ کہکشاں حصہ 2۔ حصہ 2 یہ ہمارا مین بک ہے، اسی سے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور دوسرا ہے ہمارا گرامر۔ دوسرا کیا ہے؟ ہمارا گرامر ہے۔ یہ ان 2 بکوں سے، گرامر سے اور ہماری جو مین بک ہے کلاس 12 کا کہکشاں حصہ 2، ان سے سوالات بنتے ہیں۔ گرامر کی بات کر لیں تو گرامر کے کل 30 چیپٹر ہم لوگ پڑھیں گے، اور ان 30 چیپٹروں میں ہم لوگ گرامر کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے الگ سے کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کلاس میں جو پڑھایا جائے گا وہی کافی ہوگا، اس لیے اس کی فکر نہ کریں۔ اب ہم لوگ مین بک کی طرف چلتے ہیں، جو ہمارا بک ہے کہکشاں حصہ 2۔ اس کے اندر مین کل 33 چیپٹر ہیں۔ کتنے ہیں؟ 33 چیپٹر ہیں، جسے ہمیں ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ چیپٹر ہیں، کچھ اسباق ہیں جنہیں دیکھنا ہوگا ہمیں۔ اب ان 33 چیپٹروں کو 2 بھاگوں میں بانٹا گیا۔ ہمارا جو مین بک ہے کہکشاں حصہ 2، یہ 2 بھاگوں میں بٹا ہوا ہے۔ عام طور سے جو کتابیں ہوتی ہے وہ
नस्र और नज्म के हिस्से में तकसीम होता है, बटा हुआ होता है। तो कहकशां हिस्सा दो हिस्सों में बटा हुआ है। इनका पहला हिस्सा नस्र है, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रोज सेक्शन बोलते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग गद्यांश या पद्यांश बोला जाता है। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा जो है ये हमारा है हिस्सा नज्म। दूसरा हिस्सा हमारा नज्म है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पोइट्री सेक्शन। इसी को हिंदी में बोला जाता है पद। इन दो हिस्सों में हमारी जो किताब है कहकशां ये बटी हुई है। हम इन दोनों हिस्सों के चैप्टरों को देखेंगे, हमें क्या क्या पढ़नी है, किस अंदाज से हमें तैयारी करनी है, ताकि हम 90+ स्कोर ला सकें, अच्छे नंबर से कामयाब हो सकें। पहला है हिस्सा नस्र, जिसे हम गद्य कहते हैं। इसमें पहला चैप्टर है खाका। खाका का एक चैप्टर हमारी किताब में है। दूसरा है मजमून जमा मज़ामीन। इनके 3 चैप्टर हैं, 3 असबाक हैं। तीसरा है इंशाइया। इंशाइया का एक चैप्टर है। इसी तरीके से चौथा जो हमारा चैप्टर है, चौथा असबाक है हिस्सा नस्र का, वो 2 चैप्टर है, 2 असबाक हैं। पांचवा अफसाना है। हमारी किताब में 5 अफसाने हैं। छठा है खुतूत या खत, जिनका एक सबक, एक चैप्टर है। और 7वां है खुद नविश्त, इसका एक चैप्टर है। और 8वां है खुतबा, इसका एक चैप्टर है। कुल हो गए 3, 1 4, 1 5, 2 7, 3 10, 5 15। हमें कुल 15 असबाक को पढ़नी है, 15 चैप्टर को पढ़ना है। ये नस्र का प्रोज सेक्शन या गद्यांश का कुल 15 असबाक हुए, जिसे हमें पढ़नी है अच्छे से और उसकी तैयारी करनी है, जिनसे सवालात बनते हैं। दूसरा हिस्सा नज्म है, जिसे काव्य पाठ कहा जाता है या पद कहा जाता है। इसमें हमारे कौन कौन से असबाक हैं, इन्हें हम जानेंगे। पहला है नज्म। 8 नज्म हमारे किताब में है। इन 8 नज्मों को हमें पढ़नी है। दूसरा है गज़ल। गज़ल के 5 असबाक हैं, 5 चैप्टर हैं, जिन्हें हमें पढ़ना है, जिनकी तैयारी करनी है। तीसरा है कता, तारीखी लिखा हुआ है, इसे तारीखी करें, तारीखी। इनके 2 चैप्टर हैं, 2 असबाक हैं। चौथा है मरसिया। इनके एक चैप्टर हैं, एक सबक हैं। और 5वां है कसीदा। इनके एक चैप्टर है। और छठा है गीत का एक सबक है, एक चैप्टर है। तो हमारे कहकशां हिस्सा दोम का दूसरा हिस्सा जो है, जिसे हिस्सा नज़म कहते हैं, इसमें हमें पढ़नी है 18 असबाक।
18 اسباق یا 18 چیپٹر؟ 15 چیپٹر ہمارے ہو گئے حصہ نثر کے، 15 اسباق حصہ نثر کے ہو گئے اور 18 حصہ نظم کے ہو گئے۔ کل 33 چیپٹر ہو گئے، 33 اسباق کو ہمیں پڑھنی ہے۔ کل کتنا؟ 33 اسباق کو ہمیں پڑھنا ہے اور خوب اچھے سے پڑھنا ہے تاکہ ہم اچھے نمبرات لا سکیں، اچھے نمبر سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ اب ان دونوں حصوں کو اور اس نصاب کو جو گرامر اور مین کتاب کہکشاں حصہ دوم میں، کہکشاں حصہ دوم کا جو نظام ہے، نصاب ہے یا پیٹرن ہے ہمارے ایگزام کا، ہم اسے سمجھیں گے۔ پیٹرن کیا ہے کہ یہ کل 100 نمبر کا ایگزام ہوتا ہے۔ کتنے نمبر کا ہوتا ہے؟ 100 نمبر کا، 100 مارکس کا ایگزام ہوتا ہے، جس میں 50 سبجیکٹیو مارکس ہوتے ہیں اور 50 جو ہے آبجیکٹیو مارکس کا ایگزام ہوتا ہے۔ یعنی 50 سبجیکٹیو سوالات آئیں گے اور 50 آبجیکٹیو آئیں گے۔ دو حصوں میں ہمارا ایگزام بٹا ہوا ہے، آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو، جو 50-50 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب ہم پیٹرن کو سمجھ لیں کہ ایگزام کے سوالات کس انداز سے آتے ہیں، ایگزام کا پیٹرن کیا ہے، طریقہ ایگزام کیا ہے، ہم تمام کو ایک نظر دیکھیں گے۔ ایگزام کا پیٹرن ہمارا ہے جو کل ملا کر کے سوالات آئیں گے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کا، ان کو ہم سمجھیں گے۔ آپ کی کتاب سے طویل سوالات، نمبر آف کوشچن یعنی کتنے کوشچن ہوں گے، یہ ٹوٹل 10 کوشچن ہوں گے۔ 10 کوشچن ہوں گے جس میں آنسر آپ کو دینا ہے 5 کا آنسر دینا ہے اور ہر کوشچن 2 نمبر کا ہوگا، ہر کوشچن 2 نمبر کا ہوگا، تو کل ملا کر کے 10 نمبر کا یہ ایگزام ہوگا۔ طویل سوالات کی کوشچن 10 تقریباً آئیں گے جس میں سے 5 کا آنسر دینا ہے اور ہر کوشچن 2 نمبر کا ہوگا، کل 10 نمبر کا ایگزام ہوگا۔ دوسرا ہے مضمون، جسے مضامین کہتے ہیں۔ یہ غلط لکھا ہوا ہے، مضامین۔ مضامین میں کل مضامین 6 ہوں گے جن میں سے 5 کا آنسر دینا ہے اور یہ 5 3 نمبر کا ہوگا، کل 15 نمبر کا ایگزام ہوگا۔ مضامین کل 6 ہوں گے، 6 میں سے 5 کا آنسر دینا ہے اور 5 مضامین 3 نمبر کا ہوگا، کل 15 نمبر کا ایگزام ہوگا۔ تیسرا پیٹرن ایگزام کا ہمارے اسباق کا ہے خط اور درخواست۔ خط اور درخواست، یہ ٹوٹل خط یا درخواست 4 ہوں گے، 4 کوشچن ہوں گے ان کا، اس میں سے ایک کا جواب لکھنا ہے، ایک درخواست یا ایک خط لکھیں گے، یہ 8 نمبر کا ہوگا، اس کا ٹوٹل نمبر 8 ہوگا۔
यानी ये 8 नंबर का एग्जाम होगा। एक खत या दरखास्त लिखनी। चौथा पैटर्न है हमारे एग्जाम का शेर की तशरीह। शेर की तशरीह 2 अशार होंगे जिनमें से एक शेर की तशरीह करनी है और ये एक शेर 5 नंबर का होगा। शेर कुल 5 नंबर का आएगा जिसमें 5 नंबर मिलेंगे। एक शेर की तशरीह करनी है। चौथा पैटर्न है हमारा इक्तिबास। इक्तिबास की तशरीह, ये 4 इक्तिबास लिखे होंगे, क्वेश्चन बना होगा, 4 इक्तिबास होगा जिसमें से 2 का आंसर हमें देना है और हर इक्तिबास 2-2 नंबर का होगा, टोटल 4 नंबर मिलेंगे। पांचवा है, छठा है तलखीस या खुलासा। ये खुलासा 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। 1 से 3 तक क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें से जवाब देना है, आंसर देना है 1 का और ये टोटल 4 नंबर का होगा। तो गोया के हम एग्जाम के पैटर्न को समझ गए। तवील सवालात टोटल 10 होंगे जिनमें से 5 का आंसर देना है और हर तवील सवालात 2-2 नंबर का होगा, तो 5 का आंसर देना है, ये टोटल 10 नंबर मिलेंगे। मज़ामीन 6 लिखे होंगे, 6 में से 5 का आंसर देना है और हर मजमून 3 नंबर का है, इसलिए इस पे 15 नंबर मिलेंगे। खत और दरखास्त, ये 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से किसी एक का आंसर देना है और ये एक 8 नंबर का होगा, इससे 8 नंबर मिलेंगे। शेर की तशरीह, ये टोटल 2 अशार लिखे होंगे सवालात में, उनमें से एक का आंसर देना है और ये एक 5 नंबर का होगा। पांचवा है इक्तिबास की तशरीह, ये 4 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 2 का आंसर देना है और ये 2-2 नंबर का होगा, इसलिए इसमें 4 नंबर मिलेंगे। छठा है तलखीस या खुलासा, ये 1 से लेकर के 3 तक आ सकते हैं जिसमें 1 का आंसर देना है और ये एक 4 नंबर का होगा। अब हम समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जाम पैटर्न किस तौर पे हमारी किताब का है और किस नहज पे हमें तैयारी करनी है। अब हम इस पूरे खाके को, पूरे निसाब को 6 पैटर्न 6 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। हमने इन्हें 6 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1 ए, बी, सी, डी, पांचवा है ई और छठा है एफ। इसमें हम जो तैयारी करेंगे, पहला खाका की, उसके बाद मजमून, 3 मजमून आएंगे हमारी किताब में। खाका के बाद 3 मजमून है, जैसा कि ऊपर बतलाया गया। पूरी किताब का निचोड़ 3 मजमून। उसके बाद इंशाइया। इंशाइया हमारी किताब में सिर्फ 1 है। उसके बाद है दास्तान। दास्तान हमारी किताब में 2 है। अफसाना, अफसाना हमारी किताब में 5 है जिसकी हमें तैयारी करनी है। खुतूत 1 है। उसके बाद
तीसरे चैप्टर तीसरे हिस्से में देखेंगे नज़म। नज़म नज़म के कुल 8 चैप्टर हैं। इन 8 चैप्टर को हमें पढ़नी है। 1 2 3 4 5 6 तीसरे हिस्से में। चौथे हिस्से में हमें पढ़ना है गज़ल। गज़ल के 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे। उसके बाद क़ता तारीख़ी, इसके 2 चैप्टर हम चौथे पार्ट में पढ़ेंगे। और उसके बाद मरसिया को हम पढ़ेंगे 1 चैप्टर। फिर 5वें हिस्से में 5वें पार्ट में हम पढ़ेंगे, ये पार्ट लिखा हुआ है, पास्ट नहीं है, पार्ट। 5वें पार्ट में हम पढ़ेंगे खुद नविश्त। 1 है, इन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद दास्तान है, दास्तान 2 है, उन्हें पढ़ेंगे। अफसाना कुल हमारी किताब में 5 हैं, जिनके 4 को हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, 1 यहाँ पढ़ेंगे। और 5वें पार्ट में हम एक खुतबा को पढ़ेंगे। 5वें ही पार्ट में हम नज़म को पढ़ेंगे, एक नज़म को। इससे पहले हम तीसरे पार्ट में 6 नज़म को पढ़ चुके होंगे। उसके बाद हम लास्ट पार्ट यानी छठे पार्ट में हम पढ़ेंगे नज़म को। नज़म इससे पहले 6 तीसरे पार्ट में हम पढ़ चुके होंगे और लास्ट पार्ट में एक नज़म पढ़ेंगे। गज़ल हम 2 पढ़ेंगे और कसीदा 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हम कसीदा यहाँ 1 है, इस कसीदे को हम लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे 1, और गीत 1 है, इसे भी हम 1 है लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस तरीके से हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और हम मन लगा करके अगर तैयारी किए तो कामयाब अच्छे नंबरात से हम हो सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर का जो चैप्टर है, ये 30 चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। 30 चैप्टर में हम कवर करेंगे, तकरीबन पूरे ग्रामर को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम सिलेबस का डिस्कस कर रहे थे, हम सिलेबस को जान चुके साथियों। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम फिर मिलेंगे कल इंशाअल्लाह।